Hi guys, welcome to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan and today we are going to solve the practice set 1.2 from the chapter Similarity. Before solving this practice set, you should know three things. That is basic proportionality theorem, property of an angle bisector and properties of three parallel lines and their transversal. मैंने ये तीनों भी चीजें मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आप वो वीडियो देखना ना भूलें ताकि ये एक्सरसाइज आपको एकदम सिंपल लगेगी, राइट? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. It is given that identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR. Now this is the angle QPR and we have to find out whether PM is the angle bisector of angle QPR in every figure. What we have to find out? Whether ray PM is the angle bisector of angle QPR. Now what is an angle bisector? It divides the given angle into two equal parts. To solve these problems you should know the property of an angle bisector. So let us revise the property of an angle bisector. What is the property of angle bisector? If PM is the angle bisector, then QM upon MR should be equal to QP upon PR. अगर QM upon MR का जो रेशियो है, if it is equal to QP upon PR, then PM will be the angle bisector. तो यही प्रॉपर्टी के थ्रू ये तीनों भी क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है. चलो सॉल्व करते हैं फिर पहले का सॉल्यूशन. सो इन ट्रायंगल PQR, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन? वी विल राइट इट डाउन. इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to 7, then PR equals to 3, then MR equals to 1.5 and MQ or QM equals to 3.5. Now, when will this PM ray be an angle bisector? Obviously, when the ratio QM upon MR will be equal to QP upon PR. So, I have to write if PM, ray PM is an angle bisector, if ray PM is an angle bisector, then QM upon MR should be equal to QP upon PR. It should be equal to QP upon PR. This is the property of an angle bisector. So write down here property of an angle bisector. Now we have to find the values of these ratios and compare them. If the values of both these ratios are same, then we can directly say that PM is the angle bisector. So let us find out the first ratio, that is QM upon MR. QM कितना है? QM is 3.5 and MR is 1.5. Now we have to solve it further. We can divide both these numerator and denominator. अगर डेसिमल निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड से भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 35 upon 50. Now both are divisible by 5, so I will divide it. 5 7s are 35 and 5 3s are 50. So you got QM upon MR equals to 7 upon 3. I will write down here QM upon MR, therefore equals to 7 upon 3. अब इसके बाजू वाला रेशियो निकालेंगे, देखते क्या आएगा. Now QP upon PR. QP कितना दिया है, यानी कि PQ that is 7 and PR is 3. Now we don't have to do anything further because this is the reduced form. इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते. Now you can see that QM upon MR is also 7 by 3 and QP upon PR is also 7 by 3, and therefore we can say that
PM, ray PM is the angle bisector. बस ये तीनों में यही करना है. Now, therefore we can say that QM upon MR is equal to QP upon PR. And therefore we can say that therefore ray, which one? PM is the angle bisector. Okay, it is the angle bisector. So remember the property of an angle bisector. Same way हमको second वाला भी solve करना है. So let us solve the second one. अब इसमें भी ढूंढ के निकालना है कि whether PM is the angle bisector. अब मैं फिर से पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ वैल्यूज लिख देता हूं. यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR, PR is 7, then PQ is 10, then MR is 6 or RM is 6 and QM is 8 or MQ is 8. Now again, if PM is the angle bisector, if ray PM is the angle bisector, अगर ray PM angle bisector है तो फिर से वही चीज होगी. क्या होगा? RM upon MQ should be equal to RP upon PQ. It should be equal to RP upon PQ. अब we have to find this. Again, this is what? This is the property of an angle bisector. यहाँ पे लिख देना property of an angle bisector. Property of an angle bisector. चलो अभी दोनों रेशियोज निकालेंगे और उनके दोनों के वैल्यूज अगर सेम है तो हमारा जो रे पीएम है वो बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर. अब RM अपॉन MQ का वैल्यू निकालते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं. कितना है? RM कितना दिया है? RM is 6 and MQ is 8. We can divide this further. We can divide this by 2. So 2 3s are 6, 2 4s are 8. So we get the ratio 3 by 4. Therefore RM upon MQ equals to 3 by 4. अब हमको निकालना है रेशियो RP अपॉन PQ का. चलो देखते हैं RP अपॉन PQ कितना होता है. RP अपॉन PQ. RP कितना दिया है? यानी कि PR that is 7 and PQ that is 10. It cannot be further divided. यानी कि ये उसका आखिरी फॉर्म है. चलो अब दोनों रेशियोज को कंपेयर करो. Is RM upon MQ equals to RP upon PQ? No, because here it is 3 by 4, here it is 7 by 10. दोनों भी रेशियो सेम आए क्या? नहीं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Therefore RM upon MQ is not equal to RP upon PQ. Okay, it is not equal to RP upon PQ, and therefore we can write that ray PM is not an angle bisector. So यहाँ पे नीचे लिख देना therefore ray PM is not an angle bisector. बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स है. सिर्फ क्या याद रखना है? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. सिमिलरली हम अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला. सेम चीजें करना है. अब अगेन वी हैव टू प्रूव और वी हैव टू शो वेदर PM is angle bisector or not. और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या थी? इफ यू रिमेंबर, now the bisector of an angle of a triangle, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle, divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. This was the property of an angle bisector. यानी कि अगर मैं ये रेशियो लेता हूं MQ upon MR, then it will be equal to QP upon PR. अगर ये दोनों सेम आए तो ही PM क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर. चलो अब देखते हैं इन ट्राइंगल. अगेन PQR, name it according to your choice. You can name it QRP also. Now in triangle QPR, MQ equals to 3.6, MR equals to 4, then
RP equals to 10 or PR equals to 10 and PQ equals to 9. PQ equals to 9. Again you have to write that if PM is the angle bisector, if PM is the angle bisector, अगर PM रे PM अगर एक एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो लिखना है अभी QM अपॉन MR, QM अपॉन MR, जो साइड पहले दी बाद में वही साइड पहले आना चाहिए, यानी कि अगर मैंने QM अपॉन MR दिया तो मैंने पहले QM लिया तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे आगे उसके QP ही लेना पड़ेगा, दैट विल बी QP अपॉन PR। चलो अभी पहला रेशियो निकालेंगे, पहले यहाँ पे रीजन लिख देना Q, ये ऐसा क्यों होने वाला है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। चलो अभी दोनों भी रेशियोज निकालेंगे, पहले लिखेंगे QM अपॉन MR। QM कितना है, QM इज 3.6, सो यहां लिख दो 3.6 और फिर MR इज 4, तो यह आया 3.6 अपॉन 4, सॉरी 3.6 अपॉन 4। अब मुझे अगर ये डेसिमल निकालना है तो मुझे नीचे कितने जीरो ऐड करने पड़ेंगे, मुझे ऐड करना पड़ेगा एक जीरो, सो इट विल बिकम 36 अपॉन 40। ओके, अब हम इस पर डिवाइड कर सकते हैं, 4 9 36 and 4 10 40। Now this is not further divisible, so this will be our final ratio, that is therefore QM upon MR will be equal to 9 upon 10। अब उसके साइड वाला रेशियो ढूंढ के निकालेंगे, that is QP upon PR। Now QP upon PR, इसका वैल्यू ढूंढो, QP कितना है, PQ that is 9 and PR is 10। This is not further divisible, so this is the final answer। Now compare both the ratios, you can see that this is also 9 by 10, this is also 9 by 10। Therefore I can write that QM upon MR is equal to QP upon PR। Then what will be the concluding statement? Obviously, therefore ray PM is the angle bisector, therefore ray PM is the angle bisector। क्यों है angle bisector? Because of the property of an angle bisector, this is an angle bisector। बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स थे, चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। Now let us solve the question number 2। What is the question? In triangle PQR, PM equals to 15, let us write down the measurements, PM is 15, then PQ is 25, PQ, this whole PQ is 25, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस 25 है जिसमें 15 PM है। ओके, अब इसके बाद PR equals to 20, PR means this whole thing is 20 PR and NR is equal to 8, NR यानी कि ये छोटा वाला that is equal to 8। What we have to prove or state whether the line NM is parallel to RQ। हमको बताना है कि NM is parallel to RQ or not। So you have to remember the converse of basic proportionality theorem। BPT का converse याद करो, if Pn upon Nr is equal to Pm upon Nq, then directly Nm will be parallel to RQ। और रीजन क्या लिखोगे, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले हमको इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो बताना होगा, और जब ये दोनों रेशियोज इक्वल आ जाएंगे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि Nm इज पैरेलल टू RQ, और रीजन क्या दोगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन, दैट गिवन में मेजरमेंट्स लिख लो, क्या क्या मेजरमेंट्स है। फर्स्ट लिखेंगे PR इक्वल्स टू 20, देन NR इक्वल्स टू 8,
then PQ equals to 25 and PM equals to 15. अब हमको कौन सा रेशियो चाहिए, ये और ये, उसके बाद इसका और इसका, तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। ओके, अब ये टोटल है 20 और छोटा है 8, तो ऑब्वियसली 20 में से 8 चला जाएगा तो वी विल बी गेटिंग दिस लेंथ। ओके, यहां पे भी वैसा, ये टोटल है 25 और ये जो पोर्शन है दैट इज 15, तो ये छोटा कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 दैट इज 10। ओके, तो पहले हमको ये सॉल्व करना है। अब ये चीजें दी है, नाउ वी कैन से दैट सेगमेंट PR यानी कि ये वाला सेगमेंट इज इक्वल टू सेगमेंट PN प्लस सेगमेंट NR, राइट। ये सेगमेंट और ये सेगमेंट मिला के ये पूरा सेगमेंट बनता है। तो सेगमेंट PR ऑलरेडी किया है, कितना है 20, तो मैं यहां लिखूंगा 20 इक्वल्स टू सेगमेंट PN, सेगमेंट PN का वैल्यू हमको निकालना है एंड प्लस सेगमेंट NR यानी कि वो है 8। अब सेगमेंट PN निकालना है तो 8 उधर चला जाएगा, तो 20 माइनस 8 इक्वल्स टू सेगमेंट PN। ओके, तो सेगमेंट PN की कितनी वैल्यू आ गई, कितना लेंथ है उसका 20 माइनस 8 दैट इज 12, तो यहां पे लिख देना दैट इज PN इज 12। सिमिलरली उधर का भी हमको निकालना है, सेगमेंट PQ is equal to segment PM plus segment MQ is equal to segment PM plus segment MQ। अब PQ का लेंथ दिया है that is 25, so write down here 25, PM कितना दिया है 15 and we have to find the length of segment MQ। अब सेगमेंट MQ निकालना है, 15 को उधर लेके जाना पड़ेगा, it will become minus 15। Therefore 25 minus 15 will be the length of segment MQ। तो 25 minus 15 कितना होता है 10, तो मैं लिखूंगा therefore segment MQ is equal to 10। यहाँ पे लिख देते हैं इसका मेजरमेंट। ओके, अब इसके आगे लिखते हैं। अब हमको रेशियो निकालना है। ओके, नाउ PN upon NR। ओके, we have to find the ratio of PN upon NR। Now PN upon NR कितना आएगा 12 upon 8 is equal to 12 upon 8। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, 4 3s are 12 and 4 2s are 8, तो we get PN upon NR is equal to 3/2। सेम चीज यहां करना है, हमको निकालना है PM upon MQ। नाउ PM upon MQ, PM कितना था हमारा 15 and MQ is 10। This is also further divisible by 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10। अब we have to write therefore PM upon MQ is also equal to 3/2। Now if you look at both the ratios, they are equal, therefore I can write that therefore इसको एक नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। Therefore from 1 and 2 I can write that PN upon NR is equal to what, PM upon MQ, is PM upon MQ। अब हमने देखा था कॉन्वर्स ऑफ BPT में कि अगर PN upon NR is equal to PM upon MQ then NM will be parallel to RQ। तो मैं ये रेशियो तो आ गया, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा therefore segment NM, हमको वही प्रूफ करना है कि NM लाइन NM जो है लाइन NM is parallel to line RQ। और रीजन, यहाँ पे रीजन लिखना बहुत जरूरी है, दैट इज द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, यहाँ पे लिखना है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अभी सॉल्व करके इसके आगे का बस इतना, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले वो तीनों भी चीजें रिवाइज कर लो जो मैंने पहले भी कहा था, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर
and property of three parallel lines and their transversal. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. Now let us solve question number 3. Question number 3 में दिया है in triangle MNP NQ is the angle bisector. Angle bisector क्या करता है? Angle को दो equal parts में divide करता है. तो NQ is the angle bisector and some measurements are given. That is MN equals to 5, PN equals to 7 and MQ equals to 2.5. And we have to find the length of this segment, that is QP. Okay, so let us solve this. But before that, you should know that what is the property that is applicable for this problem. That is the angle bisector property or property of an angle bisector. So according to angle bisector property, MQ upon QP will be equal to MN upon NP. तो यही चीज से हमको इसकी वैल्यू मिलने वाली है. So let us write down the solution. First we will write down the given things, that is in triangle MNP, first of all, which is the angle bisector, NQ is the angle bisector. NQ is the angle bisector. और उसके बाद हम लेंथ्स लिख देंगे सेगमेंट्स के. MN equals to 5, PN equals to 7 and MQ equals to 2.5. चलो अभी हमको रेशियो लिखना है, that is MQ upon QP. Now MQ upon QP, अगर पहली साइड MQ ली तो उसी का साइड पहले लेना है उधर से. Then it will be MN upon NP. MN upon NP. Now why this is the reason? Because of the property of an angle bisector. तो यहां पे लिखेंगे property of an angle bisector. रीजंस लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू हैव टू राइट द रीजंस. चलो अब इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. MQ का वैल्यू कितना है? 2.5. देन QP का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो QP विल रिमेन एज इट इज. देन MN इज 5 and NP is 7. Now 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो it will become 2.5 into 7 और QP ऊपर चला जाएगा, so that will become 5 into QP. अब मैं 5 into QP पहले लिख सकता हूँ और 2.57 बाद में भी लिख सकता हूँ. So I will write 5 QP, सिर्फ इधर का इधर कर दे रहा हूँ और इधर वाला राइट हैंड साइड पे कर दे रहा हूँ. 5 QP equals to 2.5 into 7. अब we have to find the value of QP, तो QP उधर ही रहेगा, 5 चला जाएगा नीचे. So it will become 2.5 into 7 upon 5. अब we know that 25 is divisible by 5, but here it is 2.5. So let us first divide 2.5 by 5. यहाँ पे रफ में कर लो 2.5 divided by 5. 5 zeros are 0. अब डेसिमल तो ऊपर भी डेसिमल, नीचे आएगा 5 and 5 5s are 25. So you get the answer as 0.5. So when you divide 2.5 by 5, you get 0.5. So QP कितना है? 0.5 multiplied by 7. तो 0.5 multiplied by 7 कितना होगा? 5 7s is 35 and the decimal is after one digit from the right hand side. तो यहाँ पे भी डेसिमल एक डिजिट के बाद फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो QP equals to 3.5. तो हमको मिल गया QP equals to 3.5. मेजरमेंट नहीं दिए तो हम जनरली लिखते हैं यूनिट्स. सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर. सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, वहां पे दिया है ट्रायंगल ABC and it is given that angle APQ and angle PBC are both measuring 60 degrees. Okay, now what we have to prove in this question, that AP upon PB is equal to AQ upon QC. Now in order to solve this problem, you should remember basic proportionality theorem, which tells you that if PQ is parallel to BC, then AP upon PB will be equal to AQ upon QC. AP upon PB
will be equal to AQ upon QC. तो सबसे पहला जो हमको क्या करना है, we have to prove that these lines PQ and BC are parallel to each other. Now for that you have to imagine one thing. Now suppose that these are two lines. Okay, ये two lines को मैं यहाँ पे separately उतार देता हूँ. Okay, और उनका मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूँ. This is their transversal. What is a transversal? A line that cuts across two or more lines. अब इनका नाम दे देता हूँ. ये जो लाइन है वो ये है और BC लाइन जो है वो यहाँ पर है. तो let us name them. This is P, this is Q, this is B, and this is C, and this is A. Now it is given that angle APQ is 60 degrees and angle PBC is also of 60 degrees. Now look at these two angles. They are on the same side of the transversal on the right hand side, and this angle is above the line and this angle is also above the line. ये कौन से type of angles होते हैं? These are corresponding angles. और हमने और एक चीज पढ़ी थी कि अगर corresponding angles equal है, then the lines are parallel to each other. तो अगर हमने ये दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर दिया तो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP upon BB will be equal to AQ upon QC. So let us write down the solution for this problem. Now in triangle ABC, PQ and BC are two lines. PQ and BC are two lines. They are not parallel because we don't know right now whether they are parallel or not. Therefore, we have to first prove that these are parallel. So, in triangle ABC, PQ and BC are two lines, and AB is the transversal. See, look at this line. This is nothing but the transversal. AB is the transversal. Now we will say that angle APQ is equal to angle PBC. APQ PBC दोनों का मेजरमेंट 60 डिग्री है. तो हम लिखेंगे एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल PBC इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. ओके, दिस इज ऑलरेडी गिवन. Now, as angle APQ is equal to angle PBC, we can say that PQ is parallel, line PQ is parallel to line BC. But why? Corresponding angles are equal. If the corresponding angles are equal, the lines are parallel to each other. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal, and therefore the lines are parallel to each other. So हमको एक चीज तो मिल गई, PQ is parallel to BC. तो ये इंपॉर्टेंट चीज था. अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC. क्यों लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो वी हैव प्रूव्ड दिस दैट AP upon PB is equal to AQ upon QC. So let us move on to the next problem. Now let us solve question number 5. अब question number 5 solve करने के पहले you have to remember the property of three parallel lines and their transversals. चलो करते हैं क्वेश्चन. In trapezium ABCD is a trapezium. Side AB parallel to side PQ and PQ parallel to DC. इसका मतलब तीनों lines are parallel to each other. That is already given. Now some measurements are given. Let us write it down. AP equals to 15. ये है 15 AP. Then PD equals to 12. यहाँ से यहाँ तक का distance है 12. Then QC is 14 and you have to find BQ. Okay, हमको क्या find out करना है? BQ. So remember the properties of three parallel lines and their transversal. According to this property,
AP upon PD will be equal to BQ upon QC. Okay. Property of three parallel lines and their transversal में this ratio AP upon PD is equal to BQ upon QC. So first let us write down the things that are given. Given में दिया है AB is parallel to side PQ. यहाँ पे साइड लिख दो, साइड AB parallel to side PQ, parallel to side DC. This parallel to this and this is also parallel to this. And line AD and line BC are their transversals. ये तीन parallel lines हैं and these are their transversals. So and line AD and BC are their transversals. So we know that when there are three parallel lines and they have been cut by two transversals, then what will be the ratio? AP upon PD will be equal to, therefore AP upon PD will be equal to BQ upon QC. And what will be the reason? You have to write down the reason, very important. Property of three parallel lines, property of three parallel lines and their transversals Now let us write down the measurements. AP का कितना वैल्यू दिया है 15, then PD का कितना दिया है 12, then BQ का हमको फाइंड आउट करना है तो BQ वैसे ही रखेंगे हम, और हमको QC दिया है 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ BQ का वैल्यू निकालना है तो 14 को इधर लेके चले जाएंगे तो व्हाट विल इट बिकम 14 into 15 upon 12 is equal to BQ। अब क्या क्या डिवाइड हो सकता है देख लेते हैं। अभी 3 5 15 and 3 4 12। अब 2 2 4 and 2 7 14। तो कितना आया? दैट इज 35। 7 into 5 is 35। Therefore 35 upon 2 equals to BQ। यानी कि आगे यहां पे लिख लेता हूं, therefore BQ is equal to 35 upon 2। सिर्फ BQ को यहां लिख दिया, 35 को राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब 35 को 2 से डिवाइड करो and you will get the answer। So BQ equals to 35 divided by 2। Now 2 1s are 2, 15, 2 7s are 14, बचा 1, डिजिट खत्म हो गए तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0 and 2 5 are 10। So आंसर कितना आया? 17.5। So your BQ value is 17.5 units। ओके, ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। सिर्फ एक ही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तीन चीजें याद रखनी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। और एक चीज उसके साथ कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी भी याद रखना है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। यू हैव टू फाइंड QP। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है यूजिंग द गिवन फिगर। अब फिगर देखते ही एक चीज पता चल जाती है कि क्या यूज करना है। ऑब्वियसली ये देखो यहाँ पे दोनों भी सिंबल्स सेम है, तो अगर दोनों सिंबल्स सेम है इसका मतलब कि ये दो एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो भी इक्वल होता है। तो जब भी कोई भी फिगर में अगर सेम दो सिंबल दिए रहेंगे इसका मतलब होता है कि these two angles are equal to each other, and we know that a line that divides a particular angle into two equal parts। ऐसी लाइन जो एक पर्टिकुलर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब प्रीवियस जो प्रॉब्लम देखे थे उसमें डायरेक्टली दिया था कि NQ इज द एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये मिडल लाइन को पिछले प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली दिया था कि इट इज एन एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे वो चीज दी नहीं है, सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट NQ इज द एंगल बाइसेक्टर। सो लेट अस राइट डाउन द प्रूफ फॉर दिस और सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। Now, in triangle MNP,
see the two angles that are equal to each other. MNQ is equal to QNP. Angle MNQ is equal to angle QNP. That means this line is dividing the angle N into two equal parts. Okay, इसको additional information लिख देते हैं. Segment NQ divides angle N in two equal parts. And we know that the line that divides the angle into two equal parts is called as a angle bisector. And therefore we can write that therefore segment NQ is the angle bisector. Okay, segment NQ is the angle bisector. तो अब आपको पता चल गया कि segment NQ is the angle bisector. तो अब हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर यूज कर सकते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? MQ अपॉन QP should be equal to MN upon NP. Therefore, I will write MQ upon QP will be equal to MN upon NP. MN upon NP. Now, you have to write the reason. That is very very important. तो reason क्या लिखेंगे? Property of an angle bisector. So here you have to write property of an angle bisector. Reasons क्यों लिखना है? क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया. उनको तो पता होना चाहिए कि किस वजह से ये रेशियो आया हुआ है. So property of an angle bisector. चलो अभी वैल्यूज पुट करते हैं. MQ की वैल्यू है 14. देन QP की वैल्यू है, QP ढूंढ के निकालना है तो QP वैसे के वैसा. देन MN कितना है? MN is 25 and NP is 40. अगेन 40 यहाँ पे चला जाएगा, QP राइट हैंड साइड पे चला जाएगा. सो लेट अस राइट 14 into this is 40 equals to QP will go to the right hand side and it will become 25 into QP. अब हमको QP की वैल्यू निकालना है तो QP को वहीं रख देंगे और we will move 25 to the left hand side. तो 25 चला जाएगा इसके नीचे. So this will become 14 into 40 upon 25 equals to QP. Now let us solve this 40 and 25. Okay, we can divide both of them by 5. So 5 8s is 40 and 5 5s is 25. Okay, और कोई डिवाइड होता है क्या? और तो डिवाइड होते हुए नहीं दिख रहा है. तो पहले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे 14 into 8. 8 4s are 32. 3 carry. 8 1s are 8. 9 10 11. And divided by 5 is QP. अब यहाँ आगे कंटिन्यू करता है. QP equals to ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया तो आई शुड राइट दिस ऑन द राइट हैंड साइड. 112 अपॉन 5. चलो अभी 112 को 5 से डिवाइड करते हैं. 112 डिवाइडेड बाय 5. 5 2s are 10. Remainder 1. Then 12 will come here. Again 5 2s are 10. 2 will be the remainder. डिजिट्स खत्म हो गए तो आएगा डेसिमल पॉइंट और इसके आगे आएगा 0. 5 4s are 20. So you get QP equals to 22.4 units. Okay, 22.4 units. So ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था. चलो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्या दिया हुआ है? ये फिगर दिया हुआ है और उसमें कहा है कि AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. That means these three lines are parallel to each other. Now this is again a very simple problem, but if you remember the properties of three parallel lines and their transversals, if you remember that, then you know that FD upon DB will be equal to EC upon CA. अगर आपको याद होगा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. अब मैंने समझो यहाँ पे लिख दिया AB, CD, E एंड F. अगर ये तीन लाइंस पैरेलल है
तो AC अपॉन CE विल बी इक्वल टू BD अपॉन DF। तो सेम चीज यहाँ पे हमको अप्लाई करनी है। सो लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन नाउ। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन में है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। उसमें क्या लिखना है जो बहुत जरूरी है कि कौन से उनके ट्रांसवर्सल्स है। एंड लाइन BF and line AE are their transversals, and line AE are their transversals. अब इसमें इंफॉर्मेशन जो दी है उनके मेजरमेंट्स लिख सकते हो। दैट इज BD equals to 8, then DF equals to 4, then AC equals to 12 and CE equals to X। हमको X की वैल्यू भी ढूंढ के निकालनी है। अब according to the property of three parallel lines and their transversals, we can directly write that FD upon DB equals to EC upon CA। इसका उल्टा भी ले सकते हो, BD upon DF is equal to AC upon CE, दोनों भी चलेगा। So let us write FD upon, now FD upon DB will be equal to EC upon CA equals to EC upon CA। इसका रीजन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? Because of the property of three parallel lines and their transversal। So you have to write down here property of three parallel lines and their transversals रीजन नहीं लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे, तो रीजन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। FD दिया हुआ है, FD इज 4, इसको ठीक कर देता हूं, FD इज 4, so let us write down 4, DB is 8, then EC कितना है, EC is X and CA कितना है 12। we have to find out the value of X, तो 12 को इधर लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बनेगा 4 into this 12 will go up and upon 8 equals to X। अब जो जो डिवाइड होता है उनको डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, then 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। so हमको मिल गया X की वैल्यू, X is equal to 6। so I will write here therefore X is equal to 6। लेकिन आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि और एक चीज हमको उसमें ढूंढ के निकालना है, that is what AE। okay, we have to find the length AE। now उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं। AE जो है, सेगमेंट AE जो है, इट इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर सेगमेंट्स। AE किससे बना हुआ है, AC प्लस CE से। सो सेगमेंट AE इक्वल्स टू सेगमेंट AC, यानी कि ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस सेगमेंट CE। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। AC ऑलरेडी दिया है 12 एंड CE हमने निकाला था, CE यानी कि X और X यानी कि 6, तो यहां पे लिख देंगे 12 प्लस 6 यानी कि 18 यूनिट्स। Therefore length of segment AE is equal to 18 units। so ये भी बहुत सिंपल सा आंसर था। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है LMN and ray MT bisects angle LMN। so MT is the angle bisector which is dividing the angle M into two equal parts। then the measurements are given, LM is given as 6, MN is given as 10 and TN is given as 8। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, LT अपॉन TN इक्वल्स टू LM अपॉन MN, लेकिन कब, when MT is the angle bisector।
चलो अभी ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन, व्हाट इज गिवन। नाउ वी विल राइट LM equals to 6, then MN equals to 10 and TN equals to 8. Okay, this is already given. And then what is the next important information? That MT is the angle bisector. Okay, MT is the angle bisector. It is the angle bisector of angle LMN. Okay, of angle LMN. Now we will directly write the ratio. Therefore, LT upon TN, LT upon TN will be equal to LT पहले लिया तो यही साइड आएगी पहले LM upon MN, LM upon MN. अब यहाँ पे रीजन लिखना भूलना मत. What is the reason? Property of an angle bisector. Property of an angle bisector. चलो अभी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. LT दिया हुआ है क्या? LT हमको शायद फाइंड आउट करना है. यस, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ LT. तो LT को ऐसे ही रखेंगे. व्हाट इज द लेंथ ऑफ TN? इट इज 8. देन LM इज 6 एंड MN इज 10. सो LT क्या बनेगा? देयरफॉर LT इक्वल्स टू, ये 8 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो इट विल बिकम 6 into 8 upon 10. अब डिवीजन करते हैं, जो जो डिवाइड हो सकता है. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. तो LT कितना आया हमारा? LT इक्वल्स टू 6 4 जा 24 एंड डिवाइडेड बाय 5. चलो अभी 24 को 5 से डिवाइड करते हैं. We know that 5 4 is 20. Remainder is 4. अब डिजिट्स खत्म हो गए तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और इसके आगे 0. So 5 8 is 40. तो हमारा आंसर कितना आया? 4.8. Therefore LT equals to 4.8. So ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. So let us move on to the next question. Now let us solve question number 9. क्या दिया है? इन ट्राइंगल ABC, BD bisects angle ABC. BD is bisecting the angle ABC, यानी कि ये और ये एंगल दोनों सेम होंगे. ABD is equal to BBC. So BD becomes the angle bisector. क्यों ये एंगल bisector है? Because it is dividing the angle B into two equal parts. और इंफॉर्मेशन दी है, लेंथ दी है. AB की वैल्यू है x, then BC की वैल्यू है x plus 5, then AD is x minus 2 and DC is x plus 2. We have to find the value of x. Again, we have to use the property of an angle bisector. According to property of an angle bisector, AD upon DC will be equal to AB upon BC. और फिर हम उनको इवेल्युएट करेंगे और हमको मिल जाएगी वैल्यू x की. So let us write down the solution. First, write down the given information. BD is the angle bisector in triangle ABC. BD is the angle bisector of which angle? Of angle B. BD is the angle bisector of angle B. And the lengths are given. Let us write down the lengths. That is AB equals to x. Then BC equals to x plus 5, then AD is x minus 2 and DC is x plus 2. चलो अभी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम डायरेक्टली कौन सा रेशियो लिख सकते हैं? नाउ AD अपॉन DC is equal to AB upon BC. Is equal to AB upon BC. And what is the reason? Property of an angle bisector और angle bisector property दोनों भी लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ angle bisector property. Angle bisector property.
चलो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से हमको ये दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे। अब इनके वैल्यूज हमको सब्स्टिट्यूट करना है। एडी कितना था x माइनस 2, तो एडी की जगह पे लिख दो x माइनस 2 अपॉन डीसी। डीसी कितना है x प्लस 2, सो राइट डाउन x प्लस 2। AB इज x एंड BC इज x प्लस 5। चलो अब इनको सॉल्व करना है। x plus 5 चला जाएगा इधर on the left hand side and x plus 2 will go on the right hand side. Denominator will become numerator here. Here also denominator will become numerator when it goes to the other side of the equal to sign. तो ये बनेगा x minus 2 into x plus 5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन equals to x into x plus 2. x into x plus 2. Now let us solve this. इसको कैसे सॉल्व करते पता है ना? पहले x into x plus 5, then minus 2 into x plus 5. Similarly, we have to do the same thing here also. पहले क्या लिखेंगे? x into x plus 5, then minus 2 into x plus 5 equals to, अब यहाँ पे तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है। x into x is x square and 2 into x is 2x और बीच में रहेगा प्लस साइन क्योंकि यहाँ पे भी है प्लस साइन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। x into x x square प्लस ये वाली प्लस साइन यहाँ पे भी प्लस 5 into x 5x। नाउ minus 2 into x is minus 2x and minus 2 into plus 5, minus into plus is minus and 2 into 5 is 10, तो minus 2 into plus 5 is minus 10। आगे लिख लो equals to x square plus 2x। अब मैं यही इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। x square plus 5x x square plus 5x minus 2x minus 10 minus 2x minus 10 equals to x square plus 2x equals to x square plus 2x। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म्स है यानी कि x square और x वाले जो टर्म्स है वो एक साइड पे ला लेंगे और ये नंबर को we will move it on the right hand side। चलो अभी x square plus 5x minus 2x मैं वैसे लिख देता हूं। अब minus 10 हम राइट हैंड साइड पे लेके जाने वाले, तो इसको अभी मैं लिखूंगा नहीं और ये सब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करने वाले। तो x स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हुआ तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2x जब लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 2x एंड अब ये दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड पे चले गए तो बचा कुछ नहीं है, लेकिन माइनस 10 को हम राइट हैंड साइड पे लाने वाले हैं तो ये बन जाएगा प्लस 10। अगर ये मुश्किल जाता है तो और एक बार देख लो कि क्या करना है। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x। पहले जो जो सॉल्व होता है वो करके देख लो। अभी देखो x स्क्वायर 5x माइनस 2x इज 3x माइनस 10 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x। अब x स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं x स्क्वायर के बाजू ही ये वाला लिख देता हूं माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया सो इट बिकेम माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखूंगा 3x, अब 3x के बाजू में लाऊंगा 2x। 2x if I move it to the left hand side it becomes minus 2x। अब राइट हैंड साइड के सब इधर मूव हो गए और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो माइनस 10 है आई एम गोइंग टू मूव इट टू द राइट हैंड साइड सो इट विल बिकम प्लस 10। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। यह है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएंगे कैंसल्ड एंड वी गेट 3x माइनस 2x and 3x minus 2x is only x and therefore x equals to 10। So this was also a very simple problem। अब x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना था, we have to find the value of x। So x की वैल्यू आ गई 10। अब अगर आपको आएगा कि फाइंड आउट द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल तो सिंपल है, वैल्यूज पुट करना है। यहाँ पे x है तो x की वैल्यू हो गई 10, यहाँ पे x की वैल्यू है 10 तो ये साइड कितनी होगी 10 प्लस 5 यानी 15। सिमिलरली यहाँ पे x 10 है तो ये हो जाएगा 12
और यहाँ पे x माइनस टू है, तो 10 माइनस टू यानी कि ये सेगमेंट हो जाएगा 8. सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सॉल्व द 10th प्रॉब्लम. डायग्राम दिया हुआ है and look at the given information. X is joined to vertices of triangle. This point X, this is the point X. It is joined to the vertices of a triangle. Vertices यानी कि ये एक vertex है, ये और ये. So point is joined to the vertices of the triangle, and what are the vertices? D, E and F. And it is given that segment PQ parallel to DE. Segment PQ parallel to DE. Then segment QR parallel to EF. Segment QR parallel to EF. ये segment इसको parallel है, already given, and QR is parallel to EF, that is already given. And we have to prove that ये जो third है PR, that is parallel to DF. क्या दिया हुआ है कि PQ parallel to DE, QR parallel to EF. Now we have to prove that this third line PR is parallel to DF. And we have to fill in the blanks and we have to complete this activity. तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है. यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज होने वाला है और वो उसी से हमको ये सॉल्व करना है. चलो अब पहला हमने ट्राइंगल दिया है XDE. लुक एट दिस ट्राइंगल XDE. अब मैं यहाँ पे अलग से निकालता हूँ ट्राइंगल XDE को. तो X आ जाएगा ऊपर, देन D और E नीचे आ जाएंगे, और इसमें का जो बीच का लाइन है दैट इज PQ. दिस इज PQ. तो आप अगर XDE ट्राइंगल को देखोगे तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम XP upon PD should be equal to XQ upon QD when the lines PQ and DE are parallel to each other. चलो अभी देखते हैं इन ट्राइंगल XDE PQ parallel to DE, PQ parallel to D. Therefore, XP upon PD. पहला क्या आएगा? ये साइड ली है तो XP upon PD. XP upon PD. यहाँ पे लिख दो first fill in the blanks. XP upon PD will be equal to XQ upon QE. XQ upon QE. So यहाँ पे आ जाएगा XQ. And that is according to the basic proportionality theorem. अब यहाँ पे उन्होंने दिया था उसके पहले कि ट्राइंगल XDE में PQ is parallel to DE. ओके, ये गिवन इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इट इज ऑलरेडी गिवन. ओके, सो दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन. जो भी पहले से दिया है तो उसका रीजन आ जाएगा गिवन. चलो अभी एक ट्राइंगल देखा, अभी नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं XEF. ये सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए. ट्राइंगल XEF. ट्राइंगल XEF में QR is parallel to EF. Then according to basic proportionality theorem, XQ upon QE should be equal to XR upon RF. चलो अभी यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल XEF QR is parallel to EF. QR is parallel to EF. ये ऑलरेडी क्या है? गिवन है. तो यहाँ पे भी आएगा इट इज ऑलरेडी गिवन. अब ट्राइंगल XEF में अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो क्या आएगा? XQ upon QE. तो पहला आएगा XQ upon QE is equal to XR upon RF. XR upon RF. तो अभी ये दो चीजें मिल गई. ओके, अब यहाँ पे रीजन क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्वियसली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. चलो अभी आगे क्या दिया है? अब दिया है कि डैश अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस 1 and 2. ओके, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 से हमको क्या मिलेगा? चलो इक्वेशन 1 देखते हैं. मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं इक्वेशंस को. XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XQ अपॉन QE. ये हमारा है इक्वेशन 1. और सेकेंड इक्वेशन में क्या मिला हमको? XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF इज इक्वल टू
XR upon RF. ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 व्हाट कैन यू कंक्लूड? देखो यहाँ पे XQ and QE, यहाँ पे भी XQ and QE. ओके, यहाँ पे QE XQ upon QE is equal to XP upon PD and XQ upon QE is also equal to XR upon RF. तो ऑटोमेटिकली ये जो दो है वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि XP upon PD will be equal to XR upon RF. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? Therefore XP upon PD is equal to XR upon RF from equations 1 and 2. तो हमको क्या मिला? XP upon PD. XP upon PD is equal to XR upon RF. XR upon RF. क्या रिलेशन मिला कि XP upon PD equals to XR upon RF. ये ट्राइंगल देखो, इसमें हमको XP upon PD XR upon RF मिला equal to. So we can directly say that therefore PR is parallel to DF. Okay, PR is parallel to DF. लेकिन अब ये कौन सा है? It is converse of basic proportionality theorem. तो रीजन आ जाएगा segment PR parallel to segment DE. Why? Because of the converse of basic proportionality theorem. So that is the answer. Now let us solve the last question from the practice set 1.2. और ये स्टार्ट क्वेश्चन है, यानी इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एग्जाम में आ सकता है. चलो क्या दिया हुआ है देखते हैं. इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी एंड रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी. चलो पहले डायग्राम उतार लेते हैं. इन ट्राइंगल एबीसी, सो यहां पे उतार दिया ट्राइंगल एबीसी. नाउ इन ट्राइंगल एबीसी बीडी बाइसेक्ट्स एंगल ABC. ओके, जब भी ऐसा दिया रहेगा बाइसेक्ट्स एंगल ABC, तो एंगल हमेशा बीच वाला रहता है, यानी कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? B वाले को. सो B से हम एक लाइन उतारेंगे एंड उसका नाम क्या है? BD. सो BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. और एंगल कौन से इस पे रहेगा? बीच वाले इस पे, यानी कि B पे, यानी कि ये दो एंगल्स हो गए इक्वल. चलो और क्या इंफॉर्मेशन दी है? रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी. एसीबी में मिडल जो लेटर है वो सी है, तो कौन से एंगल को बाइसेक्ट करेगा? इस सी एंगल. तो यहां से भी हम एक बाइसेक्टर उतार देंगे और उसका नाम दे देंगे रे सीई. ओके, सो रे सीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी. दो एंगल बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं. अब और एक चीज दी है, दैट इज सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी. सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी. ये दोनों साइड्स भी क्या है? इक्वल है. देन प्रूव दैट ईडी इज पैरेलल टू बीसी. ये जो है ईडी इज पैरेलल टू बीसी. ईडी लाइन ड्रॉ नहीं की गई है, तो वी हैव टू ड्रॉ दैट कंस्ट्रक्शन एंड प्रूव दैट लाइन ईडी इज पैरेलल टू बीसी. चलो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. So let us write down solution. Now first we will write down the given information. So in triangle ABC, ray BD bisects angle ABC. तो हम इतना पूरा नहीं लिखेंगे. BD is the angle bisector. Ray BD is the angle bisector of angle ABC, and ray CE is the angle bisector of angle कौन सा? ACB. चलो और तीसरा इंफॉर्मेशन जो दिया है, सेगमेंट AB is congruent to segment AC. ये सब चीजें दी गई है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन. प्रूफ सॉल्यूशन की जगह लिखता हूँ गिवन. अब व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ईडी इज पैरेलल टू बीसी, यानी कि ईडी इज पैरेलल टू बीसी. ईडी लाइन को हमको ड्रॉ करना है, तो वी हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. पहले लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है? ईडी
D is parallel to BC. Then we will draw one construction and we have to join ED. Okay, so draw line ED. Draw line ED. चलो अब लिखते हैं इसका प्रूफ. लेट अस राइट डाउन द. अब ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर्स दिए हैं तो हमको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट. तो फर्स्ट वाला देखो, इन ट्रायंगल एबीसी सीई इज द एंगल बाइसेक्टर. देखो पहला है इन ट्रायंगल एबीसी, अगर हम सी को एंगल बाइसेक्टर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी EA अपॉन EB विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC. ओके, तो पहला हमको ये लिखना है that in triangle ABC CE is the angle bisector. Okay, CE is the angle bisector. Therefore रेशियो लिखना है अभी AE अपॉन EB, AE अपॉन EB will be equal to AE upon EB will be equal to AC upon BC. It will be equal to AC upon BC. ओके, रीजन लिख दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो. इक्वेशन नंबर 1 और रीजन लिखो. रीजन क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर. चलो ये हो गया बात. अभी सेम चीज करनी है लेकिन सिर्फ एंगल बाइसेक्टर को चेंज करना है. मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं. इसके आगे पहले हमने सी को एंगल बाइसेक्टर लिया था, अब हम लेंगे बीडी एज द एंगल बाइसेक्टर. इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का नाम तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही ट्रायंगल है, बट हम बाइसेक्टर का नाम चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम ये वाला बाइसेक्टर ले रहे हैं. सो इन ट्रायंगल एबीसी बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर. बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर. Therefore कौन सा रेशियो आएगा? अब ये वाला एंगल बाइसेक्टर है तो AD अपॉन BC विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC. यहां पे लिख दो फिर BD इज द एंगल बाइसेक्टर. Therefore AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, this upon this is equal to AB upon BC. AB upon BC. This is equation number 2. और इसका रीजन भी क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर. यहां पे लिख देना प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर. चलो 1 और 2 से कुछ पता चलता है क्या देखते हैं. अभी फिलहाल तो कुछ नहीं पता चल रहा है क्योंकि AE अपॉन EB एंड AC अपॉन BC है. यहाँ पे AD एंड DC है, AB अपॉन BC है, तो कुछ भी सिमिलर नहीं है. लेकिन एक चीज हमको और एक दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या दी है कि सेगमेंट AB is congruent to segment AC. Now segment AB is congruent to segment AC. Segment AB is congruent to segment AC. यानी कि हम AB की जगह AC लिख सकते हैं या AC की जगह हम लिख सकते हैं AB. चलो तो अभी इसको हम क्या कर देंगे? Therefore AD upon DC is also equal to AB क्या है? AC है, तो AC upon BC. ओके, AD upon DC is also equal to AC upon BC. अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हमको क्या पता चलता है वो देखते हैं. चलो अब मैं फिर से लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 आपको समझाने के लिए कि क्या होगा इसमें. इक्वेशन नंबर 1 है AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन BC. AC अपॉन BC, ये है इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन 3 है AD अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC. चलो अब ये दोनों राइट हैंड साइड्स इक्वल आ गए. इसका मतलब ऑटोमेटिकली उनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि AE अपॉन EB will be equal to AD upon BC. So I can write therefore AE upon EB, therefore
AE upon EB will be equal to AD upon DC. Will be equal to AD upon DC. From equations 1 and 3. From equations 1 and 3. तो इक्वेशंस 1 और 3 से हमको क्या पता चल गया कि AE upon EB equals to AD upon DC. अब इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं. यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन ED लिखा था, यहाँ पे ED को ज्वाइन करना है. तो अब हमको क्या मिला, AE upon EB is equal to AD upon DC. अब AE upon EB equals to AD upon DC आया, इसका मतलब ED is parallel to BC. Why? Converse of basic proportionality theorem. So let us write down that AE upon EB is equal to AD upon DC. Therefore, directly we can write that ED is parallel to BC. लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा, that is converse of basic proportionality theorem. तो मैं यहां पे लिख देता हूं converse of BP. So ये भी काफी इजी प्रॉब्लम था. तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है. जल्दी लौटेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ. ओके, सो मीट यू सून.